Hello, students. Good evening. I'm audible. Yeah. Good evening, guys. Hi, Saida. Hello, Ashish. Hi, Shreya. Good evening. Good evening, everybody. Yeah, I'm good, Anuja. How are you? Hi, Tayaba. Good evening. So, good evening, guys. Everybody, good evening. And let's start the session. The session is all about the transition elements and their properties. Okay. So we were dealing the transition element, and today we'll wind up this session. We'll wind up the chapter. Okay. So this will be the last session of this chapter, and we'll be able to wind up this chapter. So let me tell you, we have started the transition element, and in case of transition element, we also we discuss about the what are the transition element, how do they react, what are the properties, what are the catalytic properties, everything we discuss, right? Yes. So Rushi, good evening. Hi Rituja, good evening. Okay. So I hope my voice is clear, right? My voice is audible. Just confirm. Okay. Yeah. Let's continue. Okay. Let's continue this session and talk about the transition elements and their properties. So, as we are well aware about the transition elements, we also know about their some of the properties, but we'll discuss in detail what is the property of these transition element. So, majorly we'll be talking about the F block element, inner transition element, because yesterday we started a bit, but we'll continue with it. Okay. ठीक है। तो चलिए बता दूं मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे मैंने बताया था कि देखिए ये वाला पार्ट है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसके दो मेजर सेक्शन हैं। इसको डिटेल में हमने देखे थे कि ये दो पार्ट है, और इस दो पार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, इस दो पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट। Okay, properties of the F block element. What is this property? Means like how do this? Yeah, I'm good. The properties are similar to D block element. The properties are similar to the D block element. जैसा D block है वैसे ही प्रॉपर्टी F block की भी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ D block element are similar with the property of F block element. Elements are added to F subshell. Earlier, we used to see in case of D block element, elements were added, electrons were added to D block element earlier. In case of D block element earlier, electron were entered into the D subshells. So now, if the electrons are being added in the F subshell, if the electrons are being added in the F subshell, so this will be called as an F block element. इसको क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है एफ सबशेल के अंदर, तो इसको कहते हैं एफ block element. Okay, and of n minus 2 level. So which level is empty? N minus 2 F level, n minus 1 D level, and ns level. These three subshells are empty. These three subshells are empty, and that's why it is called as an F block element. इसीलिए इसको कहते हैं F block element, because last electron इसके कहाँ जाता है? F subshell में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाता है, इसीलिए इसको F block कहा जाता है। Place between the n minus 1 D and ns block element. So ns और n minus 1 D के बीच में प्लेस किया जाता है। Now lanthanide begin with atomic number 57 and end at 71. So lanthanide जो होता है, lanthanide begin from begin from atomic number 57 and end at
71. So it will end at 71 and begin from the 57. So hi Achal, good evening. So it will start from the 50s, 57 and end to the 71. Okay, so it will start from the 57 and end to the 71. Although historically lanthanoid are termed as rare earth element, though that historically they are termed as rare earth element, and they are fairly abundant in earth crust. They are fairly abundant in the earth crust. So I told you what is the rare earth element. Rare earth element वो element होते हैं जो अर्थ पे पाए तो जाते हैं बट एक्सट्रैक्ट बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से होते हैं. दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड वेरी डिफिकल्ट वे. ओके, दे आर फेयरली अवेलेबल ऑन द अर्थ क्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल thulium is found more in abundance than the silver. सिल्वर के कंपेयर में thulium जो होता है, thulium is found in the more in abundance in the silver. If you see the percentage, you will be finding that the 4.5%, sorry, 4.5 into 10 raised to 5 versus 0.79 percentage by mass. If you compare between their mass, so thulium is around 4.5, but the silver is 0.79. सिल्वर क्या है? 0.79 है. थ्यूलियम क्या है? 4.5 है. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो परसेंटेज बाय मास के हिसाब से सिल्वर कम प्रेजेंट है, थ्यूलियम क्या है? ज्यादा प्रेजेंट है. ओके, अर्थ क्रस्ट में थ्यूलियम क्या है? ज्यादा प्रेजेंट है. द नेम रेयर अर्थ, नाम इसका जो रेयर अर्थ दिया गया. अबंडेंस का मतलब क्वांटिटी बेटा, कितना प्रेजेंट है. इट इज डीलिंग विद क्वांटिटी. अबंडेंस मतलब कितना प्रेजेंट है, हाउ मच क्वांटिटी इज इट इज प्रेजेंट. मोर अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. साजिद, हाँ. सो वी कैन सी द नेम रेयर अर्थ. ये रेयर अर्थ नाम क्यों दिया गया? अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको रेयर अर्थ क्यों कहा गया. व्हाई वी कॉल इट एज अ रेयर अर्थ. सो रेयर अर्थ एलिमेंट वाज कॉइन्ड because the difficulty in the extracting them economically in a pure form from other lanthanide having the similar properties. तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी होती है उनमें से क्या होता है कि इसको बहुत इकोनॉमिकली हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला? रेयर अर्थ एलिमेंट. Okay. Now, due to newer separation method like an ion exchange reagent, like the separation of these elements have becomes easier and more economical. So अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और इन एलिमेंट जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनको सेपरेशन करना आयन एक्सचेंज रेजिन से और बाकी अदर सेपरेशन टेक्निक से अब थोड़ा आसान हो गया. नहीं तो पहले कैसा होता था कि बहुत मुश्किल से इसको सेपरेट करते थे, इसीलिए इसको बोलते थे रेयर अर्थ एलिमेंट. ओके, इसका ऐसा नाम दिया गया था, रेयर अर्थ एलिमेंट. बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? एफ ब्लॉक एलिमेंट की. एफ ब्लॉक जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, अब चलिए कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ा सा. द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड. जो लेंथेनाइड होता है, लेंथ, I'm so sorry for this thing. Actually, at my place, there is something due to Wi-Fi issue, the network has gone completely, and I tried to fix it with a hotspot, but it was not happening, and it took 5 to 10 minutes. So sorry for that. Sorry for the inconvenience. Okay, let's continue. I hope I'm audible. And let's continue. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंथेनाइड के बारे में हम बात कर रहे थे. सो इन दिस केस वी वर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट मेटल्स. Soft metal with silvery white color and moderate density of around 7 gram per centimeter cube color एंड ब्राइटनेस रिड्यूस ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर. देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, ये काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है. द सॉफ्ट मेटल लेंथेनाइड जो है वो, ये लोग ज्यादातर क्या है? सॉफ्ट मेटल है. सॉफ्ट मेटल है
एंड सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। मॉडरेट डेंसिटी इज अराउंड 7 ग्राम पर cm3। द कलर एंड ब्राइटनेस रिड्यूस ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। जब एयर के प्रेजेंस में आते हैं, व्हेन दे आर कमिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सो दे आर एक्सपोज ड्यू टू when they are exposed in air, the brightness reduces। ब्राइटनेस इसका क्या होता है? ब्राइटनेस रिड्यूस होता है इसका। ब्राइटनेस रिड्यूसेस व्हेन दे आर एक्सपोजिंग टू द एयर। तो जब ये एयर से एक्सपोज होते हैं, इनका क्या हो जाता है? ब्राइटनेस रिड्यूस होता है, चमक थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि याद करिए, सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट या गोल्ड के ऑर्नामेंट, या फिर कुछ गोल्ड के तो जनरली नहीं होते, सिल्वर वगैरह के ऑर्नामेंट वगैरह होते हैं। जो ज्वेलरी अगर आप नया नया लेके आओगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत चमकदार दिखता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर आप देखते हो तो उसकी ज्वेलरी क्या हो जाती है? इसकी ज्वेलरी फीकी पड़ जाती है, धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। इसका कारण यही है, इसका कारण ये है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होने लगता है एक्सपोज टू एयर। जब एयर के प्रेजेंस में आता है तो मॉइस्चर वगैरह होने की वजह से, ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये क्या होने लगता है कि ये इसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगती है। ठीक है, इसकी चमक क्या हो जाती है? फीकी पड़ने लगती है। हाँ, good conductor of heat and electricity, yes, they are very good conductor of heat and electricity. So lanthanides are good conductor of heat and electricity। heat और electricity के वो good conductor होते हैं। ठीक है, except promethium, pm को छोड़ के all are radioactive in nature। प्रोमिथियम को छोड़ के सारे लोग, लेंथेनाइड सीरीज के सारे मेंबर जो हैं, प्रोमिथियम को छोड़ के रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। So these lanthanide series members all are radioactive in nature, excluding the promethium। The atomic and ionic radii decreases from lanthanum to lutetium। Atomic and ionic radii, atomic and ionic radii decreases from lanthanum to lutetium। lanthanum से lutetium की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है? कोई बता सकता है इसका रीजन? कम ऑन चैंपियंस, बताइए रीजन इसका। इसका रीजन ये होगा कि लैंथनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते वक्त एक ही शेल होता है, नंबर ऑफ शेल इज 1, एंड मतलब like the outermost shell in the equal number of shells, and in the same shells number of electron keep on added, and due to presence of the nuclear charge they get contracted। this contraction is called as what? इस contraction को मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? this contraction is known as a lanthanide contraction। okay, attraction is more and hence the contraction is very high। this contraction is called as a lanthanide contraction। so this point is very IMP point, very important point। okay, so just keep in mind that it is very important point। now we can see over here that binding to the water, binding to water is common, that is such that H2O is often found in the product when the isolated from the aqueous solution। H2O is found in the product when isolated from the aqueous solution। ओके, सो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, जिसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को आप खास करके अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर बार पूछी गई है एग्जामिनेशन में, तो इस बार भी पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, इस बार भी पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन याद हो गया, समझ में आ गई आप सबको बात लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। अगला देख लेते हैं, अगली स्लाइड पे क्या है, और इस पे बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं यूजुअली दे आर ग्रेटर देन द 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इनके क्या होते हैं? दे आर ग्रेटर देन द 6। coordination number is more than the 6 and they are typically 8, 9 and up to 12 they are found। इनके जो coordination number होते हैं यूजुअली कितने होते हैं?
8 9 अप टू 12 तक पाए जाते हैं। तो ये भी याद रख लेना कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा होते हैं, 8 9 और 12 तक पाए जाते हैं। Lanthanides are strongly paramagnetic in nature. Lanthanides are strongly paramagnetic in nature. बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक, अब बताइए पैरामैग्नेटिक मतलब क्या मैंने बताया था। तो पैरामैग्नेटिक मतलब दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। गैदोलीनियम becomes the ferromagnetic before 16 degree Celsius. Gadolinium becomes ferromagnetic becomes 60 before, or sorry, below the 16 degree Curie point. So this point is called as a Curie point. So you can say at the temperature at which gadolinium start behaving like a ferromagnetic, the reason is what? ओ वाह, आज पार्टी है अनुराग के घर पे। कोई बात नहीं अनुराग, वी आर कॉर्डियली इनवाइटेड एंड वील इनवाइट आवरसेल्फ डायरेक्टली टू योर हाउस। ठीक है, सो 16 डिग्री सेल्सियस क्यूरी पॉइंट, सिस्टर्स बर्थडे, ओके, टेल हर हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड। ओके, द अदर हेवियर lanthanides, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium becomes the ferromagnetic at the much lower temperature. So always keep in mind that they are the paramagnetic. See, always keep in mind that they are the paramagnetic, but they will behave like the ferromagnetic in at below temperature. Means like if we decrease the temperature of these substances, they will start behaving like the ferromagnetic in nature. And whatever the temperature at which they behave like the ferromagnetic, that temperature point is called as a Curie temperature. क्यूरी टेम्परेचर किसको कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिक लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, वो लोअर टेम्परेचर पे आने के बाद वो बिहेव करने लगते हैं फेरोमैग्नेटिक के जैसा, फेरोमैग्नेटिज्म जैसा बिहेव करने लगते हैं। और इस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे वो फेरोमैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगेंगे उन्हें कहते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर। एंड क्यूरी टेम्परेचर इज यूजुअली फाउंड एट वेरी बिलो टेम्परेचर, मीन 16 डिग्री 15 डिग्री ऐसे लोअर टेम्परेचर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खास प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखना है आपको। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, the similar spectra in the gas solution and solid. So magnetic and optical properties are largely independent upon the environment. मतलब magnetic property जो होती है और optical property होती है, ये largely depend करती है इनके टाइप के ऊपर, कौन से टाइप में है, जैसे कि गैसेस है, सोल्यूशन है, सॉलिड है, इनके इन्वायरमेंटल स्पेक्ट्रा के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी है किसकी? ये प्रॉपर्टी है एफ ब्लॉक एलिमेंट की। चलिए बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में और इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब आ गया एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। F block elements electronic configuration. What is electronic configuration of F block? How do it work? How it goes? So that we are going to see with it. Okay, electronic configuration. The electronic configuration of lanthanides is xenon 4f0 to 14 and 5d0 to 2 and 6s2. Okay, so this is what the electronic configuration of general electronic configuration of lanthanide. This is general electronic configuration of lanthanide. As I said, for lanthanoids, it's a 4f shells. 4f shells में 4f वाले शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो लैंथेनाइड सीरीज है। 5f शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ओके, सो एक्टिनाइड में 5f शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और लैंथेनाइड में कौन से 4f शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होंगे। xenon, you can see
the xenon 4f 0 to 14, 5d 0 to 2, and 6s2. This is because of the electronic configuration. You can see the electronic configuration easily. You will be able to understand. This is the electronic configuration of xenon. तो ये portion xenon है. ये देखो xenon है, तो xenon को हम लोग directly Xc लिख देंगे, xenon. Okay, and is the electronic configuration of xenon, and we can simplify the electronic configuration like this. We will not write the whole the chunk. We are writing in the shortcut way. You know well that how we are writing the electronic configuration of xenon. Okay, how we are writing the electronic configuration of xenon. So xenon will write like this, and we'll be getting this 4f 4f0 to 14, 4f0 to 14, 5d0 to 2, and 6s2. So this is what the electronic configuration. ये है electronic configuration. The lanthanide involve the gradual filling of the f orbital. Yes, lanthanide involve the gradual filling of f orbital. The energies of the 5d and 4f orbital are filled, are very close. For lanthanum, it is a 4f. For lanthanum, it is filled with a 4f, and for actinium, it is filled with a 5f. Okay, for actinium, we are filling with a 5f. Lanthanum, we are filling the 4f. So 4f is a slightly higher energy than the 5d. That's why the last electron enter into the 4f than the 5d. The lanthanum has the electronic configuration like this. Okay, and not this. Why? The reason is what? The last electron enter in case of lanthanum, last electron enter in case of d orbital, not in this case of xenon and 4f1, because the 4f is having the more energy than the 5d. So 5d will be filled first than the 4f. नहीं नहीं नहीं, इसके सीक्वेंस सिर्फ याद रखो बेटा. चल, इतने सीक्वेंस इतना लर्न नहीं करना है, सिर्फ इसके सीक्वेंस याद रख लीजिए. इसके सीक्वेंस याद रख लीजिए, बस हो जाएगा फिर आप. हाँ, ये मतलब जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. हैशटैग 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 रट्टा. नहीं नहीं, रट्टा तो अब देखो, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऑफबाउ प्रिंसिपल तो याद रखना पड़ेगा ना. ऑफबाउ का रूल जो है वो तो याद रखना ही पड़ेगा. उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं. तो ऑफबाउ रूल है. इसमें थोड़ा सा बस दिखने में बहुत वजनदार दिख रहा है, बहुत हेवी दिख रहा है, इसीलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन ऑफबाउ प्रिंसिपल आपको याद कर सकते हैं. ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ. इसमें यहाँ पे देखिए, ये कहाँ से आ गया बीच में स्लाइड. जस्ट अ मोमेंट, ये आ गया. गलती हो गई, वो लग रहा गड़बड़ हो गया. ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको. ओके, चलो देखते हैं इसको, ये वाले को. इफ you'll see over here in this case, if you'll see in this case, what you'll get? Lutetium have the 5d electrons to make the f orbital, and half filled and full filled, which is render them the extra stability. तो आपको थोड़ा याद रखना है कि इसमें भी जैसे कॉपर और क्रोमियम का हुआ करता था ना, कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस था, वैसे ही केस इसमें भी मिलेंगे. ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा कॉपर और क्रोमियम का केस जो जैसा होता था वैसे ही मिलेगा. और इसमें क्या है देखिए, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड विल बी द एक्स्ट्रा स्टेबल. आपको पता ही है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल. हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड हैव वेरिएबल ऑक्यूपेंसी in the 4f2 0 to 14 orbital, and this can be noticed from the table number 8.10. And number of electrons in the 6s orbital remains constant in the ground state. The valential electronic configuration of these elements thus can be represented as, you should just keep in mind this formula, n2 4 n2 n2 means like this is n2 n minus 2 f 0 to 0 to 14, and n minus 1 0 to 2, and ns 2. Okay, this is for d orbital.
So the electronic distribution of the different orbital of the element in the ground state are excited and the state are in the table number 8.11. So आप अपनी टेक्स्ट बुक का टेबल नंबर 8.11 देखेंगे तो उसमें भर भर के ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर दिया हुआ है। तो बस आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लीजिए कि कैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नो आंचल ब्रेकआउट लास्ट 10 मिनट में प्लीज डू। यस यस आई डू द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट नहीं होना क्या होना ब्रेकआउट ब्रेकआउट करो। चलिए ब्रेकआउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेंगे वापस। ठीक है, ब्रेकआउट कर लेते हैं बट उसके बाद पढ़ लेते हैं। हाँ चलिए ब्रेकआउट जरूरी है भाई, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ब्रेकआउट का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने दिमाग खराब कर रखा है कि नहीं। चलिए कुछ ज्यादा नहीं है अभी, कुछ स्लाइड और है बट एक दो ब्रेकआउट करके वापस आना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को स्लाइड भी करना है। बताओ कौन सा चैप्टर की प्रैक्टिस चाहिए आप सबको? डी ब्लॉक की प्रैक्टिस करनी है? कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है बताइए। मैं तो कल के ब्रेकआउट में सो गई थी अरे सोया मत करो बेटा। चलो ठीक है, कौन से वाला पी ब्लॉक बोल रहा है? चलो पी ब्लॉक पहले करा लेते हैं, फिर डी ब्लॉक करा लेंगे। अभी वाला, अच्छा चलो अभी वाला इज द डी ब्लॉक, अभी वाला डी ब्लॉक है। चलिए देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। सो इसके ब्रेकआउट फटाफट हो जाए। ये सब तो हमने कर लिया भाई। अच्छा चलिए देखिए यहाँ से कर लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है आपके लिए 50 लाख रुपयों के लिए। आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके इधर आ गया है। जिंक शोज वेरिएबल वैलेंसीज बिकॉज, जिंक वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, ऐसा क्यों है? ये सब तो मैंने करा दिए हैं लग रहा है, इसमें से जो नहीं करा रहा हूँ वो कराता हूँ फिर। ठीक है, आंसर कीजिए इसको जरा। Yes, 93% people have given a correct answer. That's really appreciating the complete D subshell. ये वाले क्वेश्चन हमने कराए भी थे, तो ये सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इजी हो गया होगा, मजा आ गया होगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरा मुझे बताना दो, ये वाला क्वेश्चन बताना जरा मुझे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों को आता है। भाई जो क्वेश्चन बैंक सेशन में मैंने इस क्वेश्चन को भी कराया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जरा बताइए। The following ions has the maximum number of unpaired electron. Following ion is having the maximum number of unpaired electron. बताइए इसका आंसर जरा बताइएगा, तब समझ में आएगा आप सबको। सोचिए और बताइए, सबके निकालने पड़ सकते हैं आपको कि किसके अंदर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कमॉन चैंपियन, आंसर कीजिए। क्या रे बाबा, अभी वाला मत, क्या लिखे? अच्छा सर 5 लाख रुपए के लिए, यस। अगला सवाल 5 लाख रुपए के लिए पूछे जाएंगे आप सबसे, तैयार रहिएगा। बट इसके पहले मुझे थोड़ी सी थियरी पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस भी हमें आगे ले जाना है। ठीक है, हाँ सिलेबस भी आगे ले जाना है, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है बच्चों, सो अभी इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप सबसे, बट थोड़ी देर बाद में। मुझे क्यों लगता है कि इसका आंसर 60% लोग सही देंगे। Wow, 87% people have given a correct answer. That's really appreciable. 87% people have given a correct answer, and that's really appreciable. 7% people have given the cobalt ion. 7% given the scandium. So, so please be focused. The answer is Fe3 plus. Okay? हाँ, my price 5 लाख का सीन था।
लुकरा मिल जाएंगे आपके 50 लाख रुपए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नहीं रहेगा, स्लाइड रहेगा। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, जरा थोड़ा सा बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस की। जैसे हमने हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कलर होने के बाद फिर मैं आपको वापस लेके आऊंगा इस पे, लाइक जो भी हम ब्रेकआउट करते हैं ब्रेकआउट के ऊपर मैं लेके आऊंगा। तो चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। आप सबको पता है कि हमने डी ब्लॉक में देखे थे, और डी ब्लॉक में काफी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता था। तो इसमें भी क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ कॉमन टू ऑल एलिमेंट। तो सबसे खास बात क्या है, लेंथेनाइड ग्रुप है। लेंथेनाइड ग्रुप में सबसे कॉमन बात क्या है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है। इट इज कॉमन टू ऑल एलिमेंट। ओके, विच द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस S subshell and one electron from D subshell। मतलब देखो, n-2 F and n-1 D and ns। ओके, ये रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, हर दो इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां से जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक से जाएगा। तो टोटल 3 तो हर बार जाने वाले हैं, टोटल 3 हर बार लॉस होने वाला है। और इस लॉस को हम लोग बोलेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी फिक्स इन नेचर। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड इन नेचर। जितनी ज्यादा पब्लिक उतना कम स्कोर लगता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, सो करेक्ट, ठीक है। So we can see over here that +3 oxidation state are removed from the D cells and S subshell, or F subshells are removed. The 4F electrons are strongly screened by the inner electron of the 5s and 5p. Inner electron with the 5s and 5p electrons. Thus, 4F electrons are not involved in the bonding. 4F electrons are not involved in the bonding. Beside these, some lanthanides shows the oxidation state +2 and +4। So इसके अलावा कुछ लैंथेनाइड +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं, लेकिन कॉमन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दे आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ F0, F7, F14। मतलब अनफिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। Unfilled, half filled, and full filled configuration are resulting into the ion. Okay, and for example, the cerium 4 plus, which is F0, europium 2 plus, and Tb 4 plus is F7, ytterbium plus 2 is F14. Refer to the table number 8.11. You will be finding that these elements are more stable. They are extra stable because they are of the half filled, full filled, and half filled, unfilled, and full filled. Unfilled, half filled, and full filled, and that's why they are leading out the extra stability। तो यही कारण होता है कि उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ये याद रखना है। इसमें सिर्फ एक खास बात सिर्फ आपको याद रखनी है कि इनका जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन होता है। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डी और एस से 2 इलेक्ट्रॉन और डी से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और यही कारण होता है कि +3 इनके कॉमन होते हैं। लेकिन +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये दिखाते हैं। तो ये इवन द ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन +3 जो होता है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये चीज आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले वाले पे। अगले वाले पे चलते हैं और बताता हूं जरा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ी और खास बात है। ओके, तो ये देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने बात कर ली। उसके बाद कलर एंड स्पेक्ट्रा। यस, कलर एंड स्पेक्ट्रा। इनके कलर और स्पेक्ट्रा कैसे प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट इज द कलर एंड स्पेक्ट्रा। सम ट्राइवेलेंट आयन, ट्राइवेलेंट आयन मींस ऐसा आयन जिसके ऊपर जिसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो या फिर जिसकी वैलेंसी 3 हो। सो उनको बोलते हैं ट्राइवेलेंट आयन। आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन। जब सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो भी कलर्ड होते हैं, और सोल्यूशन होते हैं तो भी कलर्ड होते हैं।
ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं तो कलर्ड होते हैं, और सोल्यूशन होते हैं तो भी कलर्ड होते हैं। कौन वाले? M3+ वाले, मतलब जिनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 है वो वाले। द कलर ऑफ द लैंथेनाइड आयन इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन, it is due to FF transition, and which corresponds to the energy in the visible region of electromagnetic spectrum। मतलब ये क्या होता है, जैसे याद करो मैंने बताया था कि मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, more light will absorb, okay, and more emission of the light will happen, more intensity will be there। so ये क्या होता है कि FF ट्रांजिशन, जब FF इलेक्ट्रॉन एफ के एफ और एफ के ट्रांजिशन जब होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि इट करस्पॉन्ड टू द एनर्जी इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, करस्पॉन्ड्स होती है यहाँ पर। और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी, विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और इसी की वजह से हमें क्या होता है, कलर दिखता है। So the color of ion is having the NF electron is about the same as those having the 14 minus n F electron, whereas an integer is 1 to 13. Means what? If it is containing the number of unpaired electron, due to presence of the number of unpaired electron, more the number of unpaired electron, more darker will be the color। ये सारा concept इसमें है for color and spectrum। Yes, for the color and spectra। So for color and spectra, keep in mind that F block element इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा तो फंस जाओगे। तो इतना याद रखना, F block element में क्या होता है, FF ट्रांजिशन होने की वजह से कलर दिखता है। ठीक है, कलर दिखता है, तो इतना याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं, जनरली कलर्ड होते हैं। ऋतुजा, आई ऑल्सो थिंक बट जस्ट फॉर कंफर्म। क्या जस्ट फॉर कंफर्म व्हाट बेटा? ऋतुजा, क्या कंफर्म करना है? आंचल, अगर आप इसका क्यों पूछ रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से द इट विल एब्जॉर्ब द सर्टेन रेडिएशन, सर्टेन लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। उस लाइट का रेंज अगर विजिबल रेंज के अंदर आता है तो फिर क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। एम, अच्छा, ये इस एम का मतलब होता है मेटल, कोई भी मेटल whose ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड की बात करते हैं। अगला स्लाइड है हमारा ये वाला। ये इसमें मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कलर अपीयर होंगे और कौन से वाले कलर अपीयर होंगे। तो अगर देख लीजिए कुछ कुछ एग्जांपल हमारे पास है। Pr3+, अगर हमारे पास Pr3+ है, प्रिजोडाइमियम है, Pr3+ है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो lanthanide ions है, these are the ions Tm3, this is 3, this is 3, so if you'll see this is M3+ ion, metal 3+ ion, you can see over here। and number of F इलेक्ट्रॉन कितना है, 4f2। 4f में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4f में 7 बॉक्स होते हैं बेटा, कितने बॉक्स होते हैं, 7 बॉक्सेस होते हैं f में। 7 बॉक्सेस में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। Okay, how many electrons are there? 7 out of 7 boxes. There are 2 electrons, so 2 unpaired electron, which will show the green color. Which will show the green color. So 14 minus n electron. So how many electrons are FF transition में use होगा? 14 minus n rule. So how many electrons are there? 2 electron ना, 2 ही electron है outermost shell में इसमें। तो 14 minus 2, so this is 12 electrons will be going for transition। मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांजिशन के लिए अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे देखिए F12 है, तो डायरेक्टली 12 हो गया। 4f3 है, 4f3 में कैसे निकालोगे, 14 माइनस n, जो 7 से कम रहेगा ना, 7 से कम रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, 14 माइनस n, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, FF ट्रांजिशन के लिए देखो F11 है तो डायरेक्टली इसका 11 लिख देना है। F3 है तो 3 कैसे निकालोगे, 14 माइनस 3, so 7 electron is used for, sorry 14 minus 3, तो 11 electron is used for transition। इसमें इसका 12 electron is used for transition। Are you getting me? तो इस तरीके से कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ग्रीन कलर, पिंक कलर, पिंक कलर, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ टेबल है, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, अब उसके बाद बारी आती है इसकी, किसकी, एक्टिनाइड की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड,
यस, विल टॉक ऑन दिस एक्टिनाइड प्रॉपर्टी। ये भी सिमिलर होती है लेंथेनाइड जैसे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड, actinide. So this is what quite similar property as compared to the lanthanide. Lanthanide जैसे ही property होती है, so similar of the lanthanide, and they appear silvery white in the color. They are appearing silvery white in the color. Okay, silvery white in color, वो भी देखो lanthanide वाला भी क्या था, silvery white था ना. Lanthanide is also silvery white color. Okay. रेडियाई, अच्छा इनके रेडियाई तो पता चल गया ना, कॉन्ट्रैक्शन है। देखो मैं बता देता हूँ, रेडियाई उसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पता चल गया। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, पता है ना, ये तो बताया था ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, और जिसकी वजह से एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है ना, रेडियाई वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो उनके रेडियस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। कहां से, लेफ्ट टू राइट से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि साइज डिक्रीज होता है। एकदम इजी था बेटा, इसीलिए क्योंकि हमने एरम हमने ये पहले छोटे छोटे बार में बीच बीच में डिस्कस कर लिया था, इसीलिए उसको मैं उस पॉइंट को मैंने हटा दिया। मतलब कि चलो आप लोगों को तो वो आ जाएगा, बिल्कुल उस पर वक्त नहीं लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो इजी थे और उसकी डिस्कशन बार बार हो चुके थे। ये रेडियस वाला भी मैंने इसीलिए नहीं बोला, क्योंकि रेडियस वाला जो एरिया है वो हमने कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बात कर लिया था, तो एक बार देखने पे समझ में आ जाता। These are highly reactive radioactive element. These are highly reactive radioactive element, and promethium, except promethium, and all the non-radioactive in nature. तो ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि प्रोमिथियम को छोड़ के बाकी सब क्या है, रेडियोएक्टिव हैं। ओके, एंड दे एक्सपीरियंस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। देखो यहाँ पे भी दे दिया, देखो वही वाला पॉइंट दिया, सेम टू सेम पॉइंट दिया है। मतलब अगर आप लेंथेनाइड के प्रॉपर्टीज को याद कर लेते हो तो एक्टिनाइड आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है। एक प्रॉपर्टी आप याद करो लेंथेनाइड का, एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी एकदम सेम टू सेम है। जहां पे लेंथेनाइड लिखा वहां पे एक्टिनाइड लिखना है बस। यहाँ पे देखिए, दे एक्सपीरियंस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम एक्टिनम टू लॉरेंसियम। अब देखो यहाँ पे लैंथेनम टू ल्यूटीशियम हुआ करता था। हाँ, यहाँ पर ल्यूटीशियम को, हाँ पीएम को छोड़ के, हाँ पीएम को छोड़ के बाकी सब लोग क्या है, ऑल आर, सॉरी एक्सेप्ट पीएम, ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। Lawrencium, Lw are known as an actinide contraction. So what is actinide contraction? Actinide contraction is decrease in the atomic and ionic radii from the actinum to Lawrencium will take place. The effect is what? Nuclear charge is the effect over here. And they are usually exhibiting the +3 oxidation state. The element of the first half of the series usually exhibit the higher oxidation state. तो इनका भी common oxidation state कौन है? +3 oxidation state इनका भी common है। इनमें भी एफ ट्रांजिशन की वजह से इनके अंदर भी कलर दिखता है, इनके अंदर भी कलर दिखता है। किसकी वजह से? एफ ट्रांजिशन की वजह से। इनका भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी सिल्वरी कलर के और व्हाइट कलर के अपीयर होते हैं, और दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। उसमें 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 भी था, एक को एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सेप्टिंग वन एंड अदर नॉट, सॉरी पीएम आर ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव इन नेचर। ये सारी चीजें हमने बात करी थी, उसमें भी इसमें भी है। उसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करी थी, इसमें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो प्रॉपर्टीज कुल मिला के सेम है, सिर्फ आपको देखने का नजरिया थोड़ा गड़बड़ाना मत। इसको एक्टिनाइड बोलना, उसको लेंथेनाइड बोलना, और छोटी छोटी चीजें जो चेंजेस हैं उनको देख लेना अच्छे से, ठीक है। यस यस, आएगा आएगा डिफरेंस आएगा, अचल अचल आएगा डिफरेंस, टेंशन मत। आ रहा है डिफरेंस, आ रहा है। तो चलिए ये बात हमने कर ली। अब उसके बाद हमारे अगली बात हम जो लोग करने वाले हैं वो देख लीजिए, ये वाला। अब ये वाला एक्टिनाइड की प्रॉपर्टीज हमने देख लिया। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, ये हम देख लेते हैं जरा। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, अभी देखिए, अभी एक्टिनाइड का एप्लीकेशन मैं करा रहा हूँ, तो लेंथेनाइड के एप्लीकेशन भी आसानी से आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्वाइट सिमिलर है यहाँ पे भी। वी हैव
seen that the half-life of natural thorium and uranium isotopes are so long that we get very negligible radiation from these elements. We find them in everyday use. इनको daily to daily use में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. किसका? एक्टिनाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. daily to daily use में हम लोग यूज कर सकते हैं. किसके लिए? बिकॉज थोरियम और यूरेनियम के केस में इनके हाफ लाइफ जो होती है, इनकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है, इसीलिए उसमें से रेडिएशन बहुत कम निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, थोरियम 5 ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड एंड 1% ऑफ सीरियम ऑक्साइड then was as major source of indoor lighting before the incandescent lamp. याद करो, मैंने क्वेश्चन बैंक में भी कराया है. ये क्वेश्चन बैंक में मैंने ये बात बताई थी कि इनकंडेंस लैंप के लिए इस्तेमाल किया जाता था. पहले जब लैंप नहीं हुआ करता था तो इनकंडेंसेंट लैंप के लिए इस्तेमाल करता था. और बिकॉज दीज ऑक्साइड कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू बर्निंग नेचुरल गैस इनटू इनकंडेंस इंटेंस लाइट. एंड इवन टुडे there is a great demand of these lights for outdoor camping. So outdoor camping के लिए आज भी इन लाइट का इस्तेमाल आज भी किया जाता है. ठीक है, आज भी इन लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो ये सब हमने देखे थे. और उसके बाद फिर आता है, देखिए, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. वी कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लैंथेनाइड. ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसको थोड़ा सा हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं. So what is the major similarities? If you'll see in the similarities, both the series are having the +3 oxidation state. दोनों के +3 oxidation state होते हैं. Both the series of the f block are filled with gradually. f orbital are filled. उसमें भी f orbital धीरे धीरे f orbital भरता है, इसमें भी f orbital भरता है. Ionic radius of the element in both series decreases with increase in atomic number. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? आयनिक रेडियस घटता है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए दोनों में घटता है. Electronegativity of all elements in the both series are low and are said to be highly reactive in nature. Okay, and the nitrate percolates, perchlorates, nitrate perchlorate and the sulfate of the all elements are soluble, while the hydroxide, fluoride and carbonates are insoluble. So this is happening in all the cases. This is similarities. But what is difference is, if we'll see, lanthanide shows the maximum oxidation state +4. +4 is the maximum oxidation state for the lanthanide. But for actinide, it shows the +3 to +7. The maximum oxidation state is what? +7 for actinide. Lanthanide do not form the complexes easily. जल्दी से complexes नहीं बनाता. But actinide have the greater tendency to form a complex with the ligands or with others. Why this is why? What is the reason? Reason is what? Variable oxidation state. Actinide is having the variable oxidation state, whereas the lanthanide is having the not variable oxidation state. और यही कारण है कि इनमें differences पाए जाते हैं. ठीक है. The lanthanide are non-radioactive except the promethium, but actinides are radioactive in nature. Actinide क्या होता है? Radioactive nature होता है, लेकिन lanthanide क्या होता है? They are non-radioactive nature excepting the promethium. Promethium को छोड़ के बाकी लोग non-radioactive होते हैं. Lanthanide do not form the oxocation. They are not forming the oxocation, but actinide forms the oxocation. Why? Because again the reason is what? The variable oxidation state. Variable oxidation state. The most of the lanthanide are colorless in nature, whereas the actinides are colored in nature. Actinide क्या होते हैं? Colored nature होते हैं, और lanthanide क्या होते हैं? Colorless in nature. Nature में colorless होते हैं. ये सारी चीजें हमने बात करी उसके differences के बारे में, उसके similarities के बारे में. अब हम लोग देखते हैं जरा एक और, that पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट भी होते हैं. पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट भी होते हैं, इनको सिर्फ सुन लेते हैं. ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ सुन लेते हैं कि क्या होता है. यू हैव सीन द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम. ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं इसको, याद है? ट्रांस यूरेनियम.
इनको क्यों बोलता है 92 के बाद? क्योंकि 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है, उसके बाद वाले लोगों को ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं, तो ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। एलिमेंट्स फॉर्म द एटॉमिक नंबर 93 टू 103, 93 से लेके 103 तक होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने बार बताया हूं मैं, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चांसेस हैं आने के। ठीक है, इसको सुन लीजिए बस, सिर्फ आपको याद हो जाएगा। नाउ इंक्लूडेड इन एक्टिनाइड सीरीज दोज फ्रॉम 104 टू 118। इन एक्टिनाइड लेंथेनाइड सीरीज में कितना था 93 टू 103, अभी 104 से इसमें 118 आर कॉल्ड एज अ पोस्ट एक्टिनाइड। ठीक है, मतलब देखो मैंने बताया 92 क्या है, तो यूरेनियम, यूरेनियम के बाद 93 से लेके 103 तक जो है वो ट्रांस यूरेनियम है, ट्रांस यूरेनियम। और 104 से लेके 118 तक ये जो सारे एलिमेंट है इनका नाम है पोस्ट एक्टिनाइड, पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स। ठीक है, ये पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट है, इनको याद रखिए। द पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर नोन सो फार द ट्रांजिशन मेटल, इसके पहले इनको ट्रांजिशन मेटल जाना जाता था, लेकिन दे आर included as a post actinide because the similar to actinide property, बट उसको पोस्ट एक्टिनाइड इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एक्टिनाइड से मैच होती थी, इसलिए दे कैन सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में उनका यूज हो सकता है। एंड सो फार 9 पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट हैव बीन सिंथेसाइज्ड। सी दे टॉकिंग अबाउट सिंथेसाइज, मतलब इनको क्या बनाया गया, लैब में बनाया गया है, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, मैन मेड है ये, दे आर मैन मेड। and it is difficult to study their chemistry, owning their short half life. For example, the element 112 has the half life only of the, see 112 का half life कितना है 2.8 into 10 raised to minus 4 second. See how quick it is. It is very very short half life for this element. ठीक है, तो ये बात हो गई, और हमने इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बड़े प्यार से खत्म कर लिया है। ठीक है, इस चैप्टर को हमने बड़े प्यार से खत्म कर लिया है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, और फिर कल मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी वही अपने समय पे, अपना समय कितना बजे 5 बजे, तो अपने टाइम पे 5 बजे मुलाकात होगी। ठीक है, कल का मैं आपको बता दूं, कल कंपटीशन सेशन भी है, कंपटीशन सेशन भी है हमारा। सेशन कंपटीशन सेशन अराउंड 3 बजे का है, मुझे याद है शायद, तो देख लीजिएगा उसे कि कब का है कंपटीशन सेशन, और अकॉर्डिंगली विल वर्क आउट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सर व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर? एक ही बात है बेटा तन्वी, एक ही बात है। ठीक है, आई चेंज माय डीपी। ओके चलिए ख्याल रखिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और सतर्क रहें, सेफ रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।